Next topic of fifth unit is polymorphism. Till now we have seen how to create a class, how to create an object of a class, how to define different attributes, that means variables in a class, and also how to define, that is methods or functions in a class. Then we have seen inheritance. So different types of inheritance we have seen. So next important topic of OOP is polymorphism. So what is polymorphism? This is a Greek word which generally means many forms. Poly means many and morphism means forms. So what is in it exactly? That means a particular single function can take different forms depending on the data which we are passing to it. That means which type of data we are giving to that method, accordingly that method will give us the result. So very simple example of this is len function. So this, as we know, len function we have seen in the strings unit. So what is this about? That means we can calculate the length of the string, we can get the length of the string using this len function. So same function, if we pass a list to it, also gives an length of that list also. So this is nothing but simple polymorphism. That means single name it will have, but depending on the type of arguments we are passing, it will give us the different results, or it is still able to work on different type of data. So here I have given some explanation about polymorphism. Please go through it. I will be sharing these notes with you. So once go through these notes and understand the concept more precisely. So I'll just read it out for you. So in programming, polymorphism means same function name but different signatures being used for different types. That means different signatures means the type of arguments also. That means the name of the function can be same, but it may have different type of arguments. Same function can have 2 arguments, that means that function can take 2 arguments or 3 arguments or 4 arguments also. So these 3 or 4 functions will be different, only their name will be same. That means name same and action different. That is the actual meaning of polymorphism. So polymorphism is a concept of OOP which means multiple forms or more than one form. Polymorphism enables using a single interference with input of different data types, different class, or maybe for different number of inputs. That's what I have discussed earlier. So in Python, as everything is an object, hence by default a function can take anything as an argument, but the execution of the function might fail as every function has some logic that it follows. So we have seen the example, as you can see over here. If I pass a hello, it is going to return me the length of the string, if that is 5, and if I am going to pass a list, it will count the number of elements in the list and it is going to give me result accordingly. So in Python, polymorphism is a way of making a function accept objects of different classes if they behave similarly. This is important. So directly we'll go for an example. Here I have declared 2 classes, that is India and USA, and in between that I have in the classes I have defined different methods, that is capital, language and type. So I have just printed simple messages in that methods. Now see, as I have common name to all the functions, that means capital, your language, your type, all these functions are having similar name, but depending on the type of class they will act differently. So as we are here, we are studying directly object oriented programming, that's why I have directly switched over this classes example. If you will see in polymorphism, you will get first of all simple examples of first of all functions also, how 2 different functions can act differently. But right now we are in OOP, so we'll directly move to this example, and this example is more than enough in your examination also. So we are defining 2 different classes and we are writing the names of the methods same. As you can see, now I will be creating 2 different objects of these 2 different classes. So because of this, in the for loop I am passing the number of objects, that means object India, object USA, and I am just calling with that variable country
that means instead of I have used here country. So country dot capital, country dot language, and country dot type. So here according to the object of that, it is going to access or it is going to execute that particular function. So as I have given first of all the object of India, so it will be executing the methods of class India only. So first of all it will print New Delhi is the capital of India, then Hindi is the most widely used language, that is spoken language, and India is a developing country, likewise. And then it will go for USA, and then it will print according to the rest of the sentences. So this is what the output we are getting in polymorphism. Generally polymorphism is used, that means when we want some standardized names to the standard functions, like finding the length. So length can be of anything, it can be a length of a list, it can be a length of a dictionary, it can be a length of a strings also, or some tuples also. So when there is a case that we want some standardization in our programming, at that time what we do, we use a standard name of the function, just we pass the data differently so that we'll get the answers according to our need. So this is all about polymorphism. Now next topic is containership. So containership, so you might have heard many a times we are having different types of containers. So what do you mean by containers? That means which can store something or which can have something in it. So same is the concept, same is the what we can say concept over here OOP also. That means there will be one class in which I will be able to store or create an object of another class. Right now, till now what we have seen, that we can create a class. In the class what we can create, we can declare the variables, we can declare the member functions, that means methods, right? But when I will be allowed, or when I am declaring another class object in some class, then I can say that is nothing but containership. That means creating the object of one class into another class is nothing but containership. So here directly I will show first of all example, then you will understand what is containership. So this is what an example. First of all the syntax. So what syntax is there? Here I am having a class A and I am having a class B. So in class B, check it out, I have created an object named obj which is of class A. So what I have done, I have created an object of class A in class B. So this particular type of relationship is known as containership. So the class which is creating object of another class in it, मतलब जो ले रहा है, जो दूसरे के ऑब्जेक्ट को खुद के इसमें बना रहा है, उसको बोलते हैं कंटेनर क्लास, राइट, कंटेन्ड क्लास, राइट. सो हम बिफोर गोइंग टू बिलो एग्जाम्पल हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं. सो we can create an object of one class into another class and that object will be a member of that class. Yes, this is very important. अब क्या होगा, क्लास B के अंदर क्लास A का ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट A का जो ऑब्जेक्ट है क्लास A का, वो अब क्या हो गया, B का मेंबर हो गया. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस इज नोन एज कंटेनरशिप, और इसको और एक चीज़ बोलते हैं, दैट इज हैज़ अ रिलेशनशिप as one class contain the object of another class, and the class which contains the object and members of another class in this kind of relationship is called the container class. इसका मतलब है यहाँ पे क्लास B जो है वो बन गया container class. The object that is a part of another object is called contained object. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो OB जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया, contained object. वेराज ऑब्जेक्ट अगेन वही है कि वो जो अनदर क्लास है, मतलब यहाँ पे जो क्लास बी है वो हो गया कंटेनर क्लास, या फिर उसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ नथिंग बट योर कंटेनर ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे मेन क्या डिफरेंस है. अब आप कहोगे कि ये चीज़ें तो हमने इनहेरिटेंस में भी देखी है कि हम डायरेक्टली उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बजाय डायरेक्टली हम उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते. यस, डेफिनेटली कर सकते. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हमें ऐसी चीज़ें चाहिए कि हमें वो चीज़ उसके अंदर कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, उस वक्त हम कंटेनरशिप यूज़ करते हैं. जैसे हम डायरेक्टली रियल लाइफ एग्जांपल में जाते हैं, जैसे कंप्यूटर है.
तो कंप्यूटर में मुझे मदरबोर्ड या फिर मुझे हार्ड डिस्क चाहिए ही चाहिए, उसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, कुछ नहीं, मुझे कंपलसरी वो चीज़ उसी में चाहिए। सो दैट इज़ नथिंग बट कंटेनरशिप। और इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, जैसे हम किसी और चीज़ का कॉपी करते हैं, जैसे कंप्यूटर का ही एग्जांपल लेते हैं। अब कंप्यूटर एक कंपनी बना रहा है, तो सेम कंप्यूटर दूसरी कंपनी भी बना सकती है, लेकिन वो क्या कर देता है, उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकता है। तो हार्ड डिस्क क्या हो गया, कंपलसरी पार्ट हो गया कंप्यूटर को, वो उसमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन इनहेरिटेंस क्या हो गया कि हमें उसका दूसरा कॉपी बना सकते, राइट, हम पहले वाले के फीचर्स दूसरे वाले में यूज़ कर सकते हैं। जैसे और व्हीकल का भी एग्जांपल है, जैसे किसी भी कार में एक्सेट्रा हमें क्या चाहिए, हमें इंजन स्टीयरिंग चाहिए ही चाहिए, राइट। बट इनहेरिटेंस का अगर ये देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस मतलब एक व्हीकल नाम का क्लास होगा जिससे हम अलग अलग डिफरेंट कार्स बना सकते हैं, जिसमें इंजन बाय डिफॉल्ट तो होगा ही होगा, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, उसके फंक्शंस एक्सेट्रा वो कुछ अलग बनाएंगे। सो वो हो गया इनहेरिटेंस। और ये क्या है कि इसमें 100% वो चीज़ें कंपलसरी होनी ही चाहिए, दैट इज़ नथिंग बट योर कंटेनरशिप। सो ये एग्जाम्पल अब देखेंगे, हमने सिंटैक्स ऑलरेडी देख लिया कि ए और बी कैसे ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इनिट सैलरी नाम का एक क्लास बना दिया, उसमें डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट इनिट फंक्शन दे दिया, उसमें एक वेरिएबल पास कर दिया पे नाम का। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, बस पे को असाइन कर रही हूँ, सेल्फ डॉट पे इज इक्वल टू पे। नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, टोटल बना रही हूँ उस पर्टिकुलर पेमेंट का। तो क्या करें हम, इंटू 12 कर रहे हैं, मतलब पूरा एनुअल सैलरी हम उसमें ले रहे हैं। अब एम्प्लॉय नाम का क्लास मैंने दूसरा डिफाइन किया, जिसमें मैं सैलरी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। पहले तो इनिट मेथड है जिसमें पे है, बोनस है, और फिर मैंने ऑब्जेक्ट सैलरी ये नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जो कौन से वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है, पहले वाले क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसमें मैंने अगेन हमें पता है कि इनिट मेथड में हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास करना है, तो इसमें भी मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया है पे नाम का। अब एनुअल सैलरी कैलकुलेट होगी। तो एनुअल सैलरी कब कैलकुलेट होगी, कि जब मुझे उस पर्टिकुलर बंदे का फाइनल 12 मंथ का मतलब 12 मंथ्स का सैलरी हो, उसके ऊपर ही मैं बोनस कैलकुलेट कर सकती हूँ, राइट। तो एनुअल सैलरी में मैंने क्या कर दिया कि टोटल, और फिर जो पहले वाला ये है सैलरी का क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट से मैंने उसका टोटल सैलरी ले लिया, दैट इज गेट टोटल, और फिर उसमें क्या कर दिया, मैं बोनस ऐड कर दिया। तो अब देखो व्हाट आई हैव डन, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जिसको मैंने दो पैरामीटर्स दैट मीन्स पे और बोनस दोनों सेंड कर दिए, राइट। और फिर एनुअल सैलरी में वो कैलकुलेट होता है। तो एनुअल सैलरी में कैसे कैलकुलेट होगा, तो पहले तो उस ऑब्जेक्ट से, सैलरी ऑब्जेक्ट से हमें उसका 12 मंथ्स का सैलरी मिलेगा, दैट इज गेट टोटल से, और फिर उसमें बोनस ऐड हो जाएगा 500। सो इस हिसाब से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है 7700। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ कंटेनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक इज डेलीगेशन। सो डेलीगेशन क्या है, सो डेलीगेशन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक ऑल्सो कॉल्ड एज डिजाइन पैटर्न where certain operations of one object are automatically applied to another usually contained object। तो उसी का आगे का पार्ट है। मतलब क्या कि अगर मैंने एक क्लास में जैसे क्लास बी था जिसमें मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब मैं प्रीवियस केस की बात कर रही हूँ जहाँ पे हम कंटेनरशिप पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या किया था, क्लास ए है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट मैंने क्लास बी में बनाया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे क्लास बी के जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि जो मुझे क्लास ए ने एक्सेस करनी चाहिए, और या फिर ऐसे भी है कि क्लास ए की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो क्लास बी ने एक्सेस करनी चाहिए। इसका मतलब है इंटरचेंजेबली। सो दोनों भी एक दूसरे के प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ डेलीगेशन। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिज़ाइन पैटर्न। मतलब एक का कुछ ऐसे पैटर्न हो, डिज़ाइन बना सकते हैं जो दूसरा बस यूज़ करे उसे। सो डायरेक्टली हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो लेट्स से यू हैव एन ऑब्जेक्ट एक्स एंड वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ जस्ट वन ऑफ इट्स मेथड्स। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेलीगेशन मैंने क्या कहा कि हमें बस जैसे कंटेनरशिप में जनरली यूज़ होता है। अब कंटेनरशिप का क्या कंसेप्ट है कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट के सारी मेथड्स एज इट इज़ ही हमें यूज़ करनी है। जैसे हार्ड डिस्क, मुझे वैसी की वैसी ही हार्ड डिस्क पूरे कंप्यूटर सिस्टम में चाहिए, राइट, वो हो गया कंटेनरशिप। लेकिन अगर फिलहाल मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे वो हार्ड डिस्क का कुछ मेमोरी है, कुछ साइज़ है, ऐसे कुछ अगर मुझे चेंज करने हैं,
तो मुझे बस अलाउड है कि मैं किसी एक मेथड को ही चेंज कर सकती हूँ। जैसे इनहेरिटेंस में मैं कितने भी मेथड्स चेंज कर सकती हूँ, कितना भी डेटा मॉडिफाई कर सकती हूँ, लेकिन कंटेनरशिप में मैं कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकती। तो डेलीगेशन उसका थर्ड पार्ट है कि कोई एक मेथड आपको, चलो एक छूट दे दी आपको, कोई एक मेथड अलाउड है कि आप वो चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट डेलीगेशन। तो वो क्या हो जाएगा, वो जो ऑब्जेक्ट आपने नए क्लास दूसरे क्लास में बनाया है, मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में जो बनाया है, तो वो ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप एक मेथड में चेंज कर सकते हो और बाकी की सारी मेथड्स एज इट इज़ डेलीगेट होंगी, मतलब एज इट इज़ यूज होंगी। दैट इज़ नथिंग बट कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन। सो आप जब ये पढ़ोगे इन द थ्योरी पार्ट यू विल अंडरस्टैंड more precisely. Just I'll read it out for you. So let's say you have an object X and want to change the behavior of just one of its methods. To solve this, you can create a new class that contains X, provides a new implementation of the method you are interested in changing, and delegates all other methods to the corresponding method of X. तो ऐसे जैसे हम नया क्लास बनाएंगे X नाम का, उसमें जो क्लास का हमें मेथड्स हम यूज़ करें उसका ऑब्जेक्ट ये क्लास X में बनाएंगे और उसके बाद बाकी की जो सारी मेथड्स है वो एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लास है अपर आउट, तो एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे मैंने इनिट मेथड दे दिया, राइट मेथड दे दिया और फिर गेट एट्रीब्यूट मेथड दे दिया। तो ये जो गेट एट्रीब्यूट मेथड है इसको दोनों साइड से देखो मैंने ये कर दिया, मतलब क्या बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेंगे। इसका मतलब क्या है, जिस क्लास से मैंने ये सारे बनाए हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, बस ये जो अंदर वाला राइट मेथड है ना वो चेंज हो गया। सो रेस्ट ऑफ दी जो मेथड्स है, रेस्ट ऑफ द डेटा मेंबर्स एक्सेट्रा जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बस फाइल्स के ऊपर से हमने थोड़ा सा ऑपरेशंस किया है, आउट फाइल एक्सेट्रा ऐसे पैरामीटर्स हमने पास कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो राइट फंक्शन है वो हम बस चेंज कर रहे हैं, राइट। बाकी के जो फंक्शंस है दैट इज डबल साइड में देखो दोनों यहाँ पे डबल अंडरस्कोर से, उसका मतलब क्या, वी कैन नॉट चेंज, दीज विल बी एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीवियस केस में थे। सो दैट इज़ व्हाट एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, दैट इज़ डेलीगेशन। अब नेक्स्ट अपना न्यू टॉपिक है, दैट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जैसे हमने पहले भी देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, जो शॉर्ट और स्वीट में एक्सप्लेन किया हो, राइट। मतलब जिसका डिटेल आइडिया नहीं दिया ओवरऑल, जैसे हम बोलते हैं ना किसी मूवी का बस एब्स्ट्रैक्ट बताओ, दैट मीन्स शॉर्ट में स्टोरी क्या है, राइट। सो दैट इज़ नथिंग बट ओनली डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दैट मीन्स जैसे ब्लूप्रिंट होगा किसी चीज़ का, जैसे अगर हम कोई पर्टिकुलर प्लान बनाते हैं किसी हाउस का, किसी बिल्डिंग का, तो पहले हम आर्किटेक्ट से डिमांड करते हैं उसका ब्लूप्रिंट। इसका मतलब क्या है कि वी आर डिमांडिंग द एग्जैक्ट क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, दैट इस स्पेस में एग्जैक्टली क्या क्या बनेगा, क्या बन सकता है। तो उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम अपने हिसाब से उसमें अंदर वाले चेंजेस कर सकते हैं, जैसे अपना इंटीरियर्स हो या फिर थोड़ा सा साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। दैट मीन्स मतलब ये हमें बस सैम्पल देगा कि ऐसा है, सैम्पल है, अब आपके हिसाब से आप इसके अंदर में चेंजेस करो। दैट इज़ नथिंग बट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो यू विल अंडरस्टैंड नीटली विथ योर एग्जाम्पल। पहले हम एग्जाम्पल देखते, देन विल स्विच ओवर टू दी थ्योरी पार्ट। सी, यहाँ पे मैंने एक एनिमल क्लास बनाया है, राइट। सो उससे पहले एब्स्ट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली हम नहीं बना सकते, इसका ऑलरेडी रेडीमेड पाइथन में मॉड्यूल है, तो उस मॉड्यूल से हमें वो पर्टिकुलर फंक्शंस इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन इन द वेरी फर्स्ट लाइन, दैट इज़ फ्रॉम ABC import ABC कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो ABC का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास, राइट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, रादर सॉरी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है, पैकेज है पाइथन के अंदर, वो हमें यूज़ करना पड़ता है अगर हमें अपने प्रोग्राम्स में डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने एक क्लास बना दिया है और जिसको मैंने डेफिनेटली मैं ABC नाम का जो जिसको मैंने इंपोर्ट किया है पैकेज, वो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और उसको पास कर रही हूँ। तो अब मैंने मूव नाम का एक फंक्शन बना दिया है, जिसको देखो ऊपर लिखा है मैंने @abstract मेथड। तो ये जो हम @abstract मेथड लिखते हैं इसको डेकोरेटर कहते हैं।
डेकोरेटर मतलब वो बताता है इंटरप्रेटर क्योंकि मैं जो बना रही हूँ अभी वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो उसको बताना तो पड़ेगा, तो कोई और चेंजेस करने की बजाय हम बस उसको आगे जैसे हम कमेंट करते हैं या फिर उस टाइप में यहाँ पे हमें उसको वो डेकोरेटर ऐड करना है। तो मूव नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन टू ऑल है, तो जो जिसको चाहिए वो उसको वैसे ले लो और यूज़ कर लो, फिर से आप डिफाइन मत करो, फिर से कुछ मत करो, उसमें सैम्पल सब रेडीमेड दिया हुआ है, आप बस खुद का डेटा उसमें ऐड करते जाओ। तो मैंने एनिमल नाम का एब्स्ट्रैक्ट ऐसा एक क्लास बना दिया और उसमें मेथड्स भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिए। अब मैंने देखो यहाँ पे पास स्टेटमेंट जो हमने देखा था प्रीवियस यूनिट्स में, स्पेशल टाइप ऑफ कीवर्ड, जैसे पास क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, लेकिन हम कहाँ पे लिखते हैं ये पास, जहाँ पे हमें फंक्शन के बॉडी में, जैसे यहाँ पे अब मैंने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया लेकिन उसके बॉडी में मुझे कुछ भी नहीं लिखना है। जब मुझे कुछ भी नहीं लिखना होता है तब मैं पास लिखती हूँ। सो दैट इज़ व्हाट द यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पास। अब मैंने क्या किया, अब मैंने नया क्लास बना दिया ह्यूमन नाम का। अब ह्यूमन भी है वो एनिमल में ही आता है, तो मैंने एनिमल के क्लास से इसको जैसे इनहेरिट कर दिया, राइट। तो अब मैंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी उसके अंदर, अब ह्यूमन क्या कर सकता है, आई कैन वॉक, आई कैन रन, आई कैन टॉक, राइट। तो मैंने बस वो मूव नाम के फंक्शन में आई कैन वॉक एंड रन ऐसे जस्ट इंक्लूड कर दिया। अब एनिमल में तो स्नेक भी हो गया, तो स्नेक भी क्या बोलेगा, मैं क्रॉल करता हूँ, आई कैन क्रॉल। तो उसके नए दूसरे क्लास में मैंने क्या कर दिया, उसका फंक्शन को और डिटेल में डिफाइन कर दिया कि आई कैन क्रॉल। वैसे ही डॉग का है आई कैन बार्क। अब जैसे मूव है लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए आई कैन बार्क ऐसे लिख दिया। सो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैंने एक सैम्पल बना दिया है, राइट। मैं बस उसको अपने हिसाब से जिसको जैसे चाहिए उसको मैं उसको वैसे इम्प्लीमेंट करूँगी। सो दैट इज़ व्हाट द यूज़ ऑफ दीज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। मतलब आपको पता है ना कि इसके आगे और कुछ नहीं होगा। अगर एनिमल का अगर मैं क्लास देखा जाए तो मैं उसकी कौन सी, अगर मुझे फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं किसी एप्लीकेशन में तो मैं क्या इनपुट लूँ, तो फीचर्स क्या हो सकते हैं, हाउ मैनी लेग्स, राइट। जैसे लेग्स ही चेंज हो सकते हैं, स्नेक के जैसे लेग्स ही नहीं होते, ह्यूमन के 2 होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स 4 होते हैं, ऐसे टाइप में। सो ऐसे कुछ जो मुझे पता है कि भाई इसके आगे इनकी पहुंच नहीं है, इसके आगे इनको इससे ज़्यादा कुछ फंक्शंस नहीं लगेंगे, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे सैम्पल वाला क्लास और उसमें ऐसे सैम्पल वाले फंक्शंस बना के रखूँगी, सो दैट जो यूज़र है, थर्ड पार्टी मेंबर जो भी डेटा फीड कर रहा है उसको बस क्या करना है, अपना अपना बस उसमें डेटा फीड करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट। तो नीचे मैंने बस वो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट्स एंड देन कॉल्ड द रिस्पेक्टिव फंक्शंस। सो देखो जो ऑब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर क्लास का बन रहा है उसी पर्टिकुलर मेथड कॉल हो रहा है, राइट। मूव, अब अगर ह्यूमन का ऑब्जेक्ट है तो ह्यूमन का ही मेथड वहाँ पे कॉल हो रहा है। सो नाउ विल गो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्शन। सो an abstract class can be considered as a blueprint for other classes. It allows you to create a set of methods that must be created within any child classes built from the abstract class. A class which contains one or more abstract methods is called an abstract class. An abstract method is a method that has a declaration but does not have any implementation. मतलब जो हमने past statement के बारे में बोला कि उसमें बस क्या होगा, definition होगा लेकिन implementation नहीं होगा. While we are designing large function units, we use an abstract class. When we want to provide a common interface for different implementations of a component, we use an abstract class. जब कुछ चीज़ें कॉमन होती है अलग अलग फंक्शंस में, उस वक्त हम ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं. तो by defining an abstract base class, you can define a common application program interface, that is API, for a set of subclasses. This capability of especially use in situations where a third party is going to provide the implementation. जब हमें कोई और वहाँ पे डेटा भरने वाला हो तो उस वक्त एक्चुअली हम ऐसे टाइप के applications बनाते हैं. So how abstract classes work? By default Python does not provide abstract classes. जैसे मैंने बोला, इसलिए हम क्या करते हैं, हम वो पैकेज इंपोर्ट करते हैं या फिर मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं और वहाँ से हम उसको एक्सेस करते हैं. दैट मीन्स पाइथन कम्स विद अ मॉड्यूल विच प्रोवाइड्स द बेस फॉर डिफाइनिंग abstract base classes, that is ABC, and that module name is ABC. So ABC works by decorating methods of the base class as abstract and then registering concrete classes as implementation of the abstract base.
अ मेथड बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट व्हेन डेकोरेटेड विथ कीवर्ड @abstract मेथड। जो मैंने बोला था डेकोरेटर मतलब इंटरप्रेटर को पता चलना चाहिए कि जो हम मेथड डिफाइन करें वो अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो वो कैसा पता चलेगा, तो उसको हमें आगे डेकोरेटर देना पड़ेगा, दैट इज @abstract मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट अपना टॉपिक है एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, अगर आपने ये नाम भी सुना है एनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, मेडिकल जो कैप्सूल रहती है, तो आपने देखा है कभी ऑब्जर्व किया है ऊपर का जो स्टिक थिन कवर रहता है, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम भी थोड़ा सा ट्राई किया है कैप्सूल जैसे दिखाना, तो दैट डायग्राम वो कैप्सूल लायक है और उसके अंदर ग्रैन्यूल्स है। सो सेम वे है एनकैप्सुलेशन, डेटा एनकैप्सुलेशन मतलब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि आप जो डेटा है एक कैप्सूल के अंदर स्टोर करोगे, राइट। अब अगर इसका जनरल एग्जांपल अगर मुझे देना है, क्यों मुझे डेटा स्टोर करना है, प्रोटेक्ट करना है, रादर स्टोर करने की जगह मैं प्रॉपर वर्ड यूज़ करूँगी, जब मुझे डेटा को प्रोटेक्ट करना है उस वक्त मैं एनकैप्सुलेशन की कंसेप्ट यूज़ कर सकती हूँ। अब क्यों मुझे डेटा प्रोटेक्ट करना है, जैसे अगर आपका कोई गार्डन है, राइट, तो गार्डन के जैसे गार्डन में कोई भी फ्रूट्स के पेड़ है, तो जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ये कम्प्लीटली एक्सेसिबल है कि क्या होता है वो बाहर के लोग आते भी है आपके गार्डन से फ्रूट्स एंड ऑल कट करके लेके भी जाते हैं, राइट। सो आपको इस पर्टिकुलर आपके गार्डन को आपको प्रोटेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यू विल प्रोवाइड एन कंपाउंड, तो आप पहले उसको कंपाउंड लगा दोगे। अब कंपाउंड भी लगाया, फिर भी क्या हो रहा है कि वो कंपाउंड इस तरह से बन गया है कि जो बाहर के जो उसके लीव और जो ब्रांचेस है, फ्रॉम दैट दे आर एबल टू स्टिल what we can say stole the fruits। फिर भी उनको एक what we can say they can come and go in the garden and still they can pluck the fruits। so now what I'll do, I'll keep a gate, मैं उसको गेट लगाऊंगी पूरे कंपाउंड को, राइट, और एक वॉचमैन रखूंगी, राइट। सो विदाउट परमिशन ऑफ दैट वॉचमैन, राइट, वॉचमैन है उसका ध्यान तो रहेगा बट ऑब्वियस है, तो विदाउट वॉचमैन्स परमिशन नो बडी विल अलाउड टू कम एंड गो इन दैट एरिया। सो ये क्या हो गया, मैंने अपने पर्टिकुलर गार्डन को टोटली प्रोटेक्ट कर दिया, मतलब जो लीगल है जिनको अलाउड है वही अंदर जाएगा, बाकी के लोग विदाउट परमिशन अंदर जा नहीं सकते। तो यहाँ पे ओओपी के कंसेप्ट में एनकैप्सुलेशन मतलब क्या कि मेरा एक क्लास है, तो क्लास इटसेल्फ इज अ कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। मतलब क्या, क्लास के अंदर क्या रहता है, वेरिएबल्स रहते हैं और मेथड्स रहते हैं, मतलब क्लास के अंदर में है ये वेरिएबल्स और मेथड्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, क्लास इटसेल्फ इज एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो अब क्या होगा कि क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम अलाउ करें नहीं करें डेटा चेंज करने के लिए, उस टाइप के फीचर्स में हम एनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसा डेटा है जो हम ऑब्जेक्ट्स को भी अलाउ नहीं कर सकते कि आप वो डेटा चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास का एग्जाम्पल लो कि मैंने एक अपना क्लास बना दिया, मतलब अपना मतलब अपना क्लासरूम, तो वहाँ पे मैंने एक डेटा एक क्लास बना दिया जिसमें मैं आपके रोल नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, योर पेरेंट्स नंबर एक्सेट्रा ये सब कर रही हूँ, राइट, स्टोर कर रही हूँ, और मैं फंक्शंस बना रही हूँ, आपका अटेंडेंस कैलकुलेशन, आपके ऑटोमेटिक पेरेंट्स को एसएमएस भेजना अगर आपका लेस अटेंडेंस है तो, आपका मार्क्स कैलकुलेशन, आपका रैंकिंग कैलकुलेशन एक्सेट्रा। तो ऑब्जेक्ट्स कौन बन गए मेरे क्लास के, आप लोग, आप सारे स्टूडेंट्स, S1 S2 S3 S4 ऐसे सारे स्टूडेंट्स बन गए। तो मैं आपको कौन सी इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए अलाउ कर सकती हूँ, चलो नाम तो आपका बार बार चेंज नहीं होता तो उसके लिए मैं नहीं अलाउ करूँगी, लेकिन आपका एड्रेस है, राइट, आपका फ़ोन नंबर्स है कि बाई चांस अगर चेंज होते हैं तो आपको ये अपडेट करना अलाउ करना चाहिए। तो ऐसे जो डेटा मेंबर्स है उसको मैं आपको एक्सेस दे सकती हूँ कि हाँ आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, आप मोबाइल नंबर एक्सेट्रा चेंज कर सकते हो, बट वेदर आई विल गिव यू एक्सेस कि आप अटेंडेंस चेंज कर सकते हो, आप परसेंटेज चेंज कर सकते हो, नो। सो ऐसे जो डेटा मेंबर्स है जहाँ पे मुझे मेरे डेटा को ऑब्जेक्ट से, आप वही क्लास के ऑब्जेक्ट हो, राइट, आप उसी क्लास के ऑब्जेक्ट हो, फिर भी मुझे अलाउ नहीं करना है आपको कि आप चेंजेस करो वो डेटा में, तो ऐसे टाइप में मैं यहाँ पे एनकैप्सुलेशन यूज़ करती हूँ। तो क्या करूँगी मैं जो है ऐसे टाइप का डेटा है जैसे आपकी अटेंडेंस है, आपका मार्क्स है,
आपका नाम एक्सेट्रा, तो इनको मैं प्राइवेट बना दूंगी और बाकी के जो डेटा है उनको मैं पब्लिक बना दूंगी। मतलब वो बाकी का डेटा जो है आप क्या करोगे, आप एडिट भी कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। सो दैट डेटा विल बी पब्लिक। लेकिन मैं कौन सा डेटा प्राइवेट बनाऊंगी, मैं आपका अटेंडेंस का डेटा प्राइवेट बनाऊंगी, आपके परसेंटेज का डेटा प्राइवेट बनाऊंगी, सो दैट आपको वो, आप हो तो उसी क्लास के लेकिन फिर भी आपको अलाउड नहीं होगा कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ऐसा लास्ट में आपको टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर्स करके, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। बट बस यहाँ पे आप ध्यान दो कि हाउ यू विल बी एबल टू हाउ यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द डेटा। तो बस आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको जो डेटा मेंबर्स है और मेंबर फंक्शंस है, दैट मीन्स मेथड्स है, उनको आपको प्राइवेट बनाना है। तो किसी भी वेरिएबल को या फिर मेथड को अगर आपको प्राइवेट बनाना है तो उसके आगे पहले आपको 2 अंडरस्कोर लगाने हैं। रिमेंबर दिस, क्या करना है आपको एनकैप्सुलेशन के टर्म में, उसके आगे आपको 2 अंडरस्कोर बनाने हैं, लगाने हैं। जैसे इनिट मेथड है, इनिट के दोनों साइड 2-2 अंडरस्कोर है, तो उसी टाइप में अगर मुझे किसी भी डेटा को, डेटा मेंबर को और या फिर मेथड को अगर मुझे ये करना है, प्राइवेट बनाना है, तो मैं बस उसके पहले स्टार्टिंग में अंडरस्कोर से, 2 अंडरस्कोर से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद में वेरिएबल का नाम लिखूंगी। डायरेक्टली एग्जाम्पल के पास जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने दिया है क्लास का एग्जाम्पल कि उसके अंदर में क्या रहता है, मेथड्स और वेरिएबल्स। सो दिस इज नथिंग बट योर एनकैप्सुलेशन। सो डायरेक्टली एग्जाम्पल देखते हैं सो दैट आपको और अच्छी तरह से समझेगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है, क्लास प्रोडक्ट। सो यहाँ पे एक इनिट मेथड लिया है जहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो प्राइवेट है। कैसे समझेगा वो प्राइवेट है, बाय द 2 अंडरस्कोर्स। देखो यहाँ पे मैक्स प्राइस और मिन प्राइस नाम के मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, लेकिन उनके स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, 2 अंडरस्कोर दिए हैं, जिसका मतलब है ये 2 जो वेरिएबल्स है ये प्राइवेट है और उनको मैंने कुछ वैल्यू स्टार्टिंग में ही दे दी। एक को 1000, मैक्स प्राइस 1000 है और मिन प्राइस 1 है। अब मैंने क्या कर दिया, बस उनको प्रिंट कर दिया सेलिंग प्राइस में कि आवर प्रोडक्ट मैक्स प्राइजेस। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ किया है, तो आपको अच्छी तरह से पता है फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है। वो जो 2 कर्ली ब्रेसेस की जगह है वो उसकी वैल्यू प्रिंट करता है। फॉर्मेट के अंदर हम जो वैल्यू पास करें उस वेरिएबल की वैल्यू वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट अगेन मैक्स प्राइस और सेल्फ डॉट मिन प्राइस ये कर दिया, बस सिंपली प्रिंट कर रही हूँ मैं प्रोडक्ट की प्राइस। अब मैंने क्या किया, उसी में 2 और मेथड्स डिफाइन कर दिए, एक प्रोडक्ट की मैक्स प्राइस, एक प्रोडक्ट की मिन प्राइस, और वहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स पास कर दिए, सेल्फ और प्राइस, सेल्फ और प्राइस। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि मेथड में मैं कुछ वैल्यूज़ पास कर रही हूँ सो दैट मैं वो जो प्राइवेट वेरिएबल्स है उनका डेटा अपडेट कर सकती हूँ। मतलब सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, मतलब जब मैं वो मेथड कॉल करूँगी जो पैरामीटर मैं उसमें दूंगी तो उस वक्त क्या होगा, मैक्स प्राइस की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। अब देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। सेम नीचे वाला फंक्शन मिन प्राइस के लिए है। अब देखो prod1 नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ऑफ प्रोडक्ट क्लास। अब यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉल कर दिया। तो सेलिंग प्राइस में क्या हो रहा है, सिंपली हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, अवर प्रोडक्ट मैक्स प्राइस, अवर प्रोडक्ट मिन प्राइस, राइट। तो पहले इसमें तो 1000 और 1 ही होगा। फिर सेकंड देखो prod1 जो कि प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स प्राइस इज इक्वल टू 1500। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम मैक्स प्राइस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, पहले उसकी मैक्स प्राइस क्या थी 1000, तो अब ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम ये पर्टिकुलर डेटा की डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज करना ट्राई कर रहे हैं। तो अब क्या होना चाहिए, मैक्स प्राइस की वैल्यू, अब ये तो प्राइवेट है, जैसे कि हमने देखा कि आप लोगों को जैसे अलाउड नहीं है आपके परसेंटेज और मार्क्स एडिट करना, उसी टाइप में यहाँ पे भी इवन वो ऑब्जेक्ट ट्राई कर रहा है कि मैक्स प्राइस की वैल्यू अब मुझे 1000 नहीं, अब मुझे 1500 चाहिए, तो भी वो अलाउ नहीं करेगा। जैसे आप आउटपुट में थर्ड लाइन देखो, जैसे prod1 डॉट फिर से सेलिंग प्राइस का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो प्रिंट कर रहा है अवर प्रोडक्ट मैक्स प्राइस, तो फिर से वो क्या कर रहा है, 1000 ही प्रिंट कर रहा है। इट इज़ नॉट चेंजिंग इट टू 1500, राइट। उसके नेक्स्ट इसमें देखो फिर से prod1 जो ऑब्जेक्ट है वो मिनिमम प्राइस भी चेंज करने का ट्राई कर रहा है। अब उसे मिनिमम प्राइस 1 नहीं चाहिए, उसको कितने चाहिए, 10 चाहिए। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखते वक्त गड़बड़ हो गया। अगेन वो क्या करेगा,
सेम वे अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द मिनिमम प्राइस ऑल्सो, मतलब ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप वो डेटा चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, prod1 डॉट prod मैक्स प्राइस। अब ये क्या हो गया, ये मेथड इसी क्लास का है, प्रोडक्ट क्लास का ही मेथड है, राइट, इनबिल्ट है, उसके अंदर ही है, क्लास के अंदर ही वो मेथड है। तो ये मेथड हमें अलाउ करेगा कि हम ये प्राइवेट वेरिएबल्स के वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने prod मैक्स प्राइस में पैरामीटर में 1500 पास किया है, तो और फिर मैंने सेलिंग प्राइस कॉल किया फंक्शन, तो अब क्या हो रहा है, अब ये डेफिनेटली वो वैल्यू चेंज कर रहा है, दैट मीन्स प्रोडक्ट मैक्स प्राइस इज 1500। और वैसे ही मैंने मिन प्राइस के लिए भी किया। इसका मतलब क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बाहर हमने बनाया, इसको अलाउड नहीं है अंदर के वेरिएबल्स का डेटा चेंज करना, लेकिन क्लास के अंदर में ही जो मेथड्स है उसको अलाउड है उसकी वैल्यू चेंज करना। जैसे फ्रूट्स किसको खाना अलाउड होगा, घर के मेंबर्स को, बाहर के मेंबर्स को नहीं, वो कितना ही रिलेटिव हो, कुछ भी हो, राइट, उसको अलाउड नहीं है। सेम वे जैसे मैं हूँ, मैं उसी क्लास के पार्ट हूँ, मुझे सारी अथॉरिटीज़ है, फंक्शंस है कि मैं चेंज कर सकती हूँ, सो आई विल बी अलाउड टू चेंज योर अटेंडेंस एंड मार्क्स, बट आप ऑब्जेक्ट्स हो उसी क्लास के, यू विल बी नॉट अलाउड टू चेंज द डेटा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। सो this is all about encapsulation. So next topic is classes and objects. So let's start our next topic, that is classes and objects. जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि क्लासेस क्या होते हैं, किस तरह से हम उसमें एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा ऐड कर सकते हैं, मेथड्स ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके और कुछ फीचर्स है जो हमने ऑलरेडी छोटे छोटे डेफिनेशंस में, फीचर्स में देखे हैं। तो नाउ विल सी देम इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंस मेथड। तो इंस्टेंस मेथड क्या है कि जो हम मेथड्स बनाते हैं, दैट मीन्स जो हमने मेथड्स अब तक सीखे हैं वही है इंस्टेंस मेथड, कुछ अलग नहीं है। अब तक के आप जो मेथड्स देखते आए हो, मतलब जो फंक्शंस हमने क्लास में डिफ़ाइन किए हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा जैसे कि मूव करके था, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, राइट। लेकिन अगर मैं उसे नॉर्मल क्लास कंसिडर करूँ तो वो क्या हो गया, इंस्टेंस मेथड। दैट मीन्स हम क्लास के अंदर की जो नॉर्मल मेथड्स बना रहे हैं वो है इंस्टेंस मेथड। सो देखते हैं इसको। इंस्टेंस मेथड्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेथड्स इन पाइथन क्लासेस। इंस्टेंस मेथड्स मस्ट हैव सेल्फ एज अ पैरामीटर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेथड्स अपनी है इंस्टेंस मेथड, उनको कंपलसरी क्या चाहिए, सेल्फ एज अ पैरामीटर चाहिए। नो डेकोरेटर नीडेड फॉर इंस्टेंस मेथड। जैसे मैंने बताया था कि @abstract मेथड, ये क्या है, डेकोरेटर है, मतलब जो बताता है इंटरप्रेटर को कि भाई जो मेथड मैं अभी डिफाइन करने वाला हूँ वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो उसी टाइप में जब आप इंस्टेंस मेथड डिफाइन करते हो तो उस वक्त आपको कोई भी डेकोरेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ईच ऑब्जेक्ट हैविंग इट्स ओन इंस्टेंस मेथड, मतलब जितने आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे उतने ऑब्जेक्ट्स में वो सारे मेथड्स और डेटा मेंबर्स अवेलेबल होंगे, राइट। 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो सारे 10 के 10 ऑब्जेक्ट्स में जो आपने इंस्टेंस मेथड वो क्लास में बनाए हैं वो सारे मेथड्स उसमें होंगे। सो डायरेक्टली हम एग्जांपल्स देखते हैं तब आपको और अच्छी तरह से समझेगा। तो यहाँ पे मैंने बस एक स्टूडेंट क्लास बना दिया है एज यूजुअल, उसकी वो इनिट बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है, उसको मैंने नेम और मार्क्स ऐसे पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे मैसेज नाम का एक मेथड बना दिया। तो ये जो है ये मैसेज नाम का मेथड है, इसे कहते हैं इंस्टेंस मेथड। तो उसको मैंने सेल्फ एज अ पैरामीटर दे दिया जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, और बस एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि सेल्फ डॉट नेम, मतलब वो पैरामीटर प्रिंट होगा गॉट सेल्फ डॉट मार्क्स, मतलब उतने मार्क्स उसको मिले हैं। सो मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, एक में मैंने ABCD नाम पास कर दिया और 30 मार्क्स पास कर दिए, ये हो गया S1 ऑब्जेक्ट। S2 ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट और फिर नाम पास कर दिया PQRS और 70 उसका मार्क्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने मेरे ऑब्जेक्ट्स है, S1 ऑब्जेक्ट है, S2 ऑब्जेक्ट है, जितने मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी उसको उतने ही वो इंस्टेंस मेथड्स अवेलेबल है। तो फिर वो बस क्या होगा, S1 डॉट मैसेज और S2 डॉट मैसेज, मैं बस वो मैसेज को दैट इज़ मेथड को कॉल करूँगी और वो मुझे आउटपुट देगा ABCD गॉट 30 मार्क्स, PQRS गॉट 70 मार्क्स। सो दिस इज़ नथिंग बट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ योर इंस्टेंस मेथड। मतलब अब
तक जो आप देखते आए वो सारे जो मेथड्स, ऑलमोस्ट सारे, आई एम नॉट सेइंग ईच एंड एवरी वन, बट ऑलमोस्ट जो सारे मेथड्स थे वो इंस्टेंस मेथड्स ही है। उसके बाद है क्लास मेथड्स। अब ये ज़रा डिफरेंट कंसेप्ट है कि क्लास मेथड क्या होता है। सो क्लास मेथड्स आर कॉल्ड बाय यूजिंग क्लास नेम। अब आपने देखा इंस्टेंस मेथड क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट नेम डॉट वो मेथड का नाम लेते हैं। जैसे प्रीवियस केस में यहाँ पे S1 S2 ऑब्जेक्ट है, S1 डॉट मैसेज लिखा, S2 डॉट मैसेज लिखा है हमने। लेकिन क्लास मेथड का क्या है, क्लास मेथड हमें क्लास का नाम ही यूज़ करना पड़ता है उसको कॉल करने के लिए। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्लास मेथड इज CLS। अब इंस्टेंस मेथड में आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, सेल्फ, लेकिन क्लास मेथड में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, CLS। सो ऐसा भी हो सकता है आपको डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंस मेथड एंड क्लास मेथड्स भी पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है फैक्ट्री मेथड्स रिटर्न क्लास ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट यूज। तो ये जो मेथड्स क्लास मेथड्स है ये क्या रिटर्न करते हैं, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। अब ये फैक्ट्री मेथड्स क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि पाइथन यूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड भी दी हुई है, जैसे स्ट्रिंग का मॉड्यूल है, राइट। लेकिन प्रिंट फंक्शन जो है जो ऑलरेडी एक मेथड है किसी क्लास का, राइट, लेकिन वो इनबिल्ट है, मतलब उसका डेफिनेशन कुछ हमें लिखना नहीं पड़ता, हम जैसा है वैसा यूज़ कर सकते। सो इसे कहते हैं फैक्ट्री मेथड्स, मतलब जो अपने इंटरप्रेटर में ऑलरेडी डिज़ाइंड डिफाइंड है, हम बस क्या करते हैं उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते। तो ऐसे टाइप के जो मेथड्स है वहाँ पे जनरली ये क्लास मेथड्स यूज़ होते हैं। सो क्लास मेथड्स आर मार्क्ड विथ क्लास मेथड डेकोरेटर। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो थे उनको भी एक डेकोरेटर की ज़रूरत थी, @एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लास मेथड्स जो है उनको भी एक डेकोरेटर की ज़रूरत है, @क्लास मेथड्स। बस इंस्टेंस मेथड को डेकोरेटर नहीं है। क्लास मेथड इज कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम एंड डॉट ऑपरेटर। जैसे इंस्टेंस मेथड कैसे कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर, वैसे क्लास मेथड कैसे कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम और डॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया है, तो पहले हमें डेकोरेटर यूज़ करना है @क्लास मेथड, फिर वो मेथड का नाम, तो इसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा क्लास मेथड में, CLS, और फिर बाकी के आर्ग्यूमेंट्स, और फिर जो हमने डेफिनेशन, हमें जो कुछ अंदर लिखना है उस मेथड के अंदर वो। तो कॉल कैसे करते हैं यहाँ पे, क्लास का नाम, डॉट ऑपरेटर, और फिर मेथड का नाम, और फिर वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक एग्जांपल देखते हैं। क्लास माई क्लास मैंने नाम का क्लास बना लिया है, तो मैं वहाँ पे एक क्लास मेथड डिफाइन कर रही हूँ जिसका नाम है कैलकुलेट। तो पहले मैंने उसको डेकोरेटर दे दिया @क्लास मेथड, और फिर डेफिनेशन मैंने लिख दिया कैलकुलेट मेथड का। तो बस CLS.cost इज इक्वल टू प्राइस प्लस 10, बस मैंने जो पैरामीटर पास किया है उसका जो प्राइस है मैं बस 10 से इंक्रीज कर रही हूँ और रिटर्न कर रही हूँ वही एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट तो बना लिया मैंने माई क्लास का, राइट, रिटर्न के बाद की जो स्टेटमेंट है मैं वो पढ़ रही हूँ। सो OBJ इज इक्वल टू माई क्लास। तो अब क्या होगा, C में वो रिटर्न कर रहा है, राइट, तो वो वैल्यू कहीं पे तो स्टोर होनी चाहिए, इसलिए हम C इज इक्वल टू क्लास का नाम डॉट वो मेथड कॉल कर रहे। अब देखो मैंने क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम लिखा है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट भी बनाया लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, राइट, मैंने डायरेक्टली क्लास का नाम और फिर मेथड का नाम कैलकुलेट किया और उसको एक पैरामीटर पास कर दिया 495। अब आपको पता है कि मैंने कैलकुलेट मेथड में बस वो प्राइस को क्या किया है, 10 से इंक्रीज़ किया, तो मैंने वो C में जो वैल्यू आया वो प्रिंट किया, फिर माई क्लास डॉट कॉस्ट प्रिंट किया, मतलब वो वेरिएबल प्रिंट किया, और OBJ.cost, मतलब जो ऑब्जेक्ट से भी मैं वो एट्रीब्यूट अगर एक्सेस करना चाहती हूँ, बस एट्रीब्यूट, आई कैन नॉट कॉल दैट क्लास मेथड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, बट उसके जो एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा अंदर में दिए हैं वो मैं डेफिनेटली एक्सेस कर सकती हूँ। तो मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, डेफिनेटली 495 मैंने पास किया था तो प्लस 10 हो गया, तो 505 एज अ आउटपुट मुझे तीनों इसमें मिल रहा है। सो दिस इज़ नथिंग बट योर क्लास मेथड्स। सो अगेन मैंने वही थोड़ा सा इलेबरेट करके और 2-3 चीज़ें उसमें ऐड कर दी, और यहाँ पे मैंने और एक प्रोग्राम बना दिया है, तो ये दैट यू कैन रेफ़र, जो पहले का जो दिया है उतना ही क्या तो भी इनफ है, अगर और आप उसको डिटेल में करना चाहते हो तो यू मे रेफ़र
दिस ऑल्सो। बस यहाँ पे थियोरी एक बार पढ़ लेना, सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा अलग टेक्निकल टर्म्स से आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। सो नेक्स्ट इज स्टैटिक मेथड्स। अब इंस्टेंस मेथड्स हो गए, क्लास मेथड्स हो गए, अब है स्टैटिक मेथड्स। सो स्टैटिक मेथड्स क्या है कि ऐसे टाइप के मेथड्स जनरली जो चेंज नहीं होते, दैट वी कैन नॉट चेंज। स्टैटिक मतलब जैसे डायनामिक होता है, दैट इज इट इज़ चेंजेबल। स्टैटिक मतलब जो इन शॉर्ट परमानेंट होता है या रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकते। लेट्स सी, यू विल अंडरस्टैंड more precisely. So static methods are special case of methods any functionality that belongs to class but that does not require the object placed in the static method. मतलब ऑब्जेक्ट का और उसका कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। आपका इनिट जो मेथड है दैट ऑल्सो वी कैन से स्टैटिक मेथड, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो जो मेथड है वो कॉल होता है। सो स्टैटिक मेथड डजंट रिसीव एनी एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स, वो कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता है। स्टैटिक मेथड्स आर जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शन दैट बिलोंग्स टू अ क्लास। स्टैटिक मेथड डज नॉट यूज एनी सेल्फ और CLS एज अ पैरामीटर, उसको कुछ भी पैरामीटर हमें देने की ज़रूरत नहीं होती। स्टैटिक मेथड्स डिफाइंड यूजिंग अ बिल्ट इन डेकोरेटर नेम्ड एट द रेट स्टैटिक मेथड। तो यहाँ पे उसको एक डेकोरेटर की ज़रूरत है, एट द रेट स्टैटिक मेथड। पाइथन यूजेस डेकोरेटर टू मेक इट ईजियर टू अप्लाई स्टैटिक मेथड फंक्शन डेफिनेशन। सो यहाँ पे देखो इसका सिंटैक्स दिया एट द रेट स्टैटिक मेथड। सो डेफिनेशन दिया मेथड का नाम, और यहाँ पे सीधे सीधे आप आर्ग्यूमेंट्स के नाम दे सकते हो और फिर स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कोई CLS देने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल देखते हैं। एक पर्सन नाम का क्लास बना दिया है जिसमें इनिट मेथड है, जैसे मैंने आई एम एन इनिट मेथड, जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये मेथड इनिट मेथड जो है अपने आप कॉल होती है। हमने ऑलरेडी इनिट मेथड का एक्सप्लेनेशन देखा है। तो अब देखो स्टैटिक मेथड कैसे वर्क करती है। सो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक मेथड बना दी हेलो नाम की, और उसमें बस मैसेज प्रिंट कर दिया हेलो स्टैटिक मेथड कोड। तो अब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पर्सन नाम का, और पर्सन से मैंने क्या किया, वो हेलो मेथड कॉल किया, राइट। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आई एम इन इनिट मेथड, ये तो डेफिनेटली प्रिंट होना ही होना है। और फिर बस पर्सन के इससे दैट मीन्स क्लास के नाम से मैं वो स्टैटिक मेथड जो है वो एग्जीक्यूट करती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के नाम से एग्जीक्यूट नहीं किया है, मतलब जैसे क्लास मेथड है कि हमें क्लास का नाम और फिर वो मेथड का नाम दे के एग्जीक्यूट करना है, उसी टाइप में स्टैटिक मेथड्स भी है। बस यहाँ पे चेंजेस इतने ही, उसको हम पैरामीटर्स ना ही पास कर सकते हैं नहीं कुछ भी, दैट मीन्स CLS सेल्फ पैरामीटर ऐसी किसी भी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं स्टैटिक मेथड्स, तो ये वहाँ पे यूज़ होते हैं कि जब भी कुछ हमें मॉडिफिकेशंस नहीं करने हैं बाहर से, बट वो फंक्शनैलिटीज़ उस क्लास में होनी चाहिए कंपल्सरीली। ऐसे जब किसी टाइप के सिचुएशंस हो उस वक्त हम स्टैटिक मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ क्लास वेरिएबल। अब क्या होता है ये क्लास वेरिएबल? सो जैसे क्लास मेथड होता है, राइट, इंस्टेंस मेथड देखा, क्लास मेथड देखा, उसी टाइप में क्लास वेरिएबल भी होता है। मतलब जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट में यूज़ हो सकता है। तो अब आप कहोगे कि अभी भी जो नॉर्मल डेटा मेंबर्स हमने देखे वो भी तो क्लास वेरिएबल थे कि जो हमने डायरेक्टली सारे के सारे इसमें यूज़ किए हैं, डेफिनेटली। लेकिन क्या होगा कि उसका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। मतलब जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए वो कॉमन रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। जैसे हमने देखा कि स्टूडेंट क्लास था तो उसमें S1 डॉट मैसेज करके हमने प्रिंट किया था, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स थे उतने ऑब्जेक्ट्स के लिए वो डिफरेंट नेम एंड मार्क्स ये टाइप के वेरिएबल्स अलग अलग थे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्लास वेरिएबल एक ही होगा, वो क्लास का ही होगा। जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वही एज अ कॉमन रहेगा सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनेंगे। दिस यू विल गेट इट क्लियर वेरी सून विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। विल गो टू द एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव सम understanding about this class variables. So a variable that is shared by all the instances of class, मतलब ये शेयरिंग करने वाला
वेरिएबल है. So class variables are defined within a class but outside any of the class method. Now understand this. क्लास वेरिएबल क्लास में डिफाइन किया हुआ रहता है लेकिन किसी भी मेथड के अंदर नहीं होता, सब मेथड्स के बाहर होता है. So class variables are not used as frequently as instance variable. So class variables are owned by class. If a class has one class variable, then there will be only one copy for that variable. All the object of that class will share the class variable. There exists a single copy of the class variable. Any change made to the class variable by an object will be reflected in all other objects. इसका मतलब ऐसे होता है कि एक ऑब्जेक्ट ने अगर वो क्लास वेरिएबल में चेंजेस कर दिए तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स में भी वही वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा. अब इसका एग्जांपल सिंपल अगर बताना है तो इंटरेस्ट रेट्स. अगर आपने कोई स्कीम्स लिए है तो अगर आपके अकाउंट जैसे और बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, राइट. सो अगर आपके इस पे इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, मतलब अगर बाहर से ही आपके इस पे वो स्कीम पे इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके इसको अलग इंटरेस्ट रेट, किसी और के लिए सेम आपके ही जैसा अकाउंट है उसको अलग इंटरेस्ट रेट नहीं. और ऐसे पॉसिबल भी नहीं है कि मैं हर एक कस्टमर का अकाउंट चेक करती बैठी और वहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करूँ. नहीं, मैं सीधी वैल्यू कहाँ पे चेंज कर दूँगी, क्लास वेरिएबल पे. मतलब वो क्या होगा, हर एक आपके जैसे जो अकाउंट्स है वो सारे इसमें वही सेम वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ क्लास वेरिएबल. एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वेरिएबल. अब आपको पता चल गया, जैसे हमने इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड देखे थे, तो उसी टाइप में ये है क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस मेथड्स. तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होंगे. जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने ऑब्जेक्ट के वो उतने इंस्टेंसेस अलग अलग डेटा मेंबर्स होंगे. सो अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड अ मेथड एंड बिलोंग्स ओनली टू द करंट इंस्टेंस, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. मतलब मेथड में जो बनाए गए वेरिएबल्स है उनको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल्स. सो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स आर ओन्ड बाय ऑब्जेक्ट. सो जितने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के जैसे नेम और मार्क्स, मैंने एग्जांपल दिया स्टूडेंट क्लास के, तो मैं अगर ऑब्जेक्ट S1 बनाऊंगी तो S1 का नेम एंड मार्क्स विल बी डिफरेंट. S2 जो है ऑब्जेक्ट, उसके वो दोनों वेरिएबल्स अलग. S3 ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, उसके लिए वो नेम और मार्क्स जो है वो वेरिएबल डिफरेंट. तो ऐसे टाइप के वेरिएबल्स को हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. सो ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्ट वेरिएबल. If a class has n objects, then there will be n separate copies of the object variables. This is very important. जैसे क्लास वेरिएबल का क्या था, एक ही कॉपी होगा और वो सारे लोग शेयर करेंगे. बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या है, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी कॉपीज वो वेरिएबल्स की होंगी. द ऑब्जेक्ट वेरिएबल इज नॉट शेयर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. सो यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं, मतलब एक ऑब्जेक्ट ने अगर उसके नेम और मार्क्स या फिर उसके वैल्यू में चेंज कर दिया तो वो वैल्यू सेम दूसरे यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ ईयर्स. तो आपने जितने सालों के लिए वो इन्वेस्ट किया है कोई बैंक कोई पर्टिकुलर अमाउंट, तो ज़रूरी है क्या कि बाकी सारे लोगों ने भी वही ईयर्स पे करना चाहिए. तो ये क्या हो गया, ये आपका खुद का पर्सनल ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब पर्सनल नंबर ऑफ ईयर्स हो गया. तो ये ऐसे हर एक के अलग अलग होंगे, तो ये डेफिनेटली मुझे सेपरेटली ही एक्सेस करने पड़ेंगे टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट और EMI वॉट एवर जो है. तो इसी टाइप में ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का अलग होता है. सो ए चेंज मेड टू द ऑब्जेक्ट वेरिएबल बाय वन ऑब्जेक्ट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन अदर ऑब्जेक्ट्स. मतलब बाहर के इसको ये चेंजेस नहीं होंगे. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे मैंने बोथ ऑब्जेक्ट और क्लास वेरिएबल दोनों के एग्जांपल्स दिए हैं. तो एक मैंने देखो वैर नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया. अब ये मैं किसी भी मेथड में नहीं किया, मतलब इनिट मेथड में भी मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, इनिट के भी बाहर किया है, मतलब डायरेक्टली कहाँ पे किया है, क्लास में किया है. तो ये क्या बन गया, वैर नाम का ये बन गया क्लास वेरिएबल. फिर मैंने इनिट मेथड में दूसरा वेरिएबल बना दिया, दैट इज़ नम, राइट. तो ये नम क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट वेरिएबल. यहाँ पे मैंने कमेंट्स देना भूल गई, बट रिमेंबर नम जो है वो बन गया ऑब्जेक्ट वेरिएबल. फिर मैंने क्या किया, द ऑब्जेक्ट वैल्यू इज
नम जस्ट प्रिंट कर दिया, और द वैल्यू ऑफ अ क्लास वेरिएबल, तो क्लास वेरिएबल का वैल्यू क्या है, स्टूडेंट डॉट, मतलब क्लास का नाम डॉट वो वेरिएबल का नाम देना है। अब यहाँ पे देखो मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, राइट। सो जैसे ही, अब आप यहाँ पे ध्यान में रखो, मैंने बस ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो आपको पता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली इनिट जो मेथड है वो कॉल होती है, तो मुझे यहाँ पे दूसरी कोई मेथड्स कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इनिट तो नहीं, क्योंकि वो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो अपने आप एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, obj1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, और फिर मैंने उसको एक पैरामीटर दे दिया 10। तो क्या हो गया, इनिट मेथड में मैंने क्या किया है, 2 लाइनें प्रिंट किए, द ऑब्जेक्ट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ क्लास वेरिएबल इज। अब देखो नम को मैंने क्या दिया है, 10 दिया है, तो नम की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10, और वैर की वैल्यू क्या हो रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 1, क्योंकि इस इनिट मेथड में देखो स्टूडेंट डॉट वैर इज इक्वल टू वैर प्लस 1 ऐसे मैंने दिया है, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैर की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से इंक्रीज हो रही है। तो जैसे मैं पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो वैर का वैल्यू हो जाएगा 1, और नम का जो मैं पास करती हूँ वो, तो उसका होना चाहिए 10। तो देखो आउटपुट में द ऑब्जेक्ट वैल्यू इज 10, द वैल्यू ऑफ अ क्लास वेरिएबल इज 1। तो सेकंड ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया obj2, तो उसको मैंने वैल्यू पास कर दिया 20, तो अब नम की वैल्यू क्या हो गई 20, और क्लास वेरिएबल की हो गई 2, मतलब उसी पर्टिकुलर वैल्यू में ही चेंजेस हो रहे, उसी में इंक्रीमेंट हो रहे, लेकिन नम क्या क्या हो रहा है, अलग अलग, जैसे ऑब्जेक्ट चेंज हो गया और ऑब्जेक्ट में जैसे अलग वैल्यू चेंज कर दी, पास कर दी, वो उसने वो वैल्यू ले ली, लेकिन क्लास वेरिएबल में जो प्रीवियस थी उसी में ही चेंजेस हो रहे हैं, जिसका मतलब है वो एक ही कॉपी होता है और सारे ऑब्जेक्ट मिलके वो अकेला ही होता है। सो दैट इज बीइंग दिस कंसेप्ट। सो अगेन थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नम की वैल्यू अगेन 30 मैंने पास कर दी, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, नम की वैल्यू 30 हो गई, लेकिन क्लास वेरिएबल की क्या हो गई 3 हो गई, दैट मीन्स उसी में फिर से वो इंक्रीमेंट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल। Now the next topic which we want to see is public and private data members. So again this is the concept what we have seen previously in data encapsulation, that we were using 2 different underscores before writing the name of the variable. So that is what concept we need to see over here. So public attributes. So what is this public attributes? That means which will be able to access by any of the object of a class. जैसे अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्लास वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, या फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, तो ऐसे वेरिएबल्स जो सारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एक्सेसिबल होंगे तो उनको कहते हैं पब्लिक डेटा मेंबर्स, और जो पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स जो बस क्लास के अंदर ही यूज़ होते हैं, बाहर के ऑब्जेक्ट्स उनको यूज़ नहीं कर सकते, सो वो टाइप का जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं प्राइवेट डेटा मेंबर्स। सो वन बाय वन देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। सो पब्लिक डेटा मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन क्लास एंड आउटसाइड क्लास ऑल्सो। प्राइवेट डेटा मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन अ क्लास ओनली, not outside the class. Python doesn't have any mechanism that effectively restrict access to any instance variable or method. तो पहला जो है public data members और public attributes. So all members in a Python class are public by default. Any member can be accessed from outside the class environment. Public variables and methods are those variables and methods that are defined in the class and can be accessed from anywhere in the program using the dot operator. जैसे हमने देखा है ऑब्जेक्ट डॉट करके हम ये मेथड्स और वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं. So public variables and methods can be accessed from within class as well as from outside the class in which it is defined. So कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, कहीं से इन द सेंस क्लास के बाहर से भी हम ये जो डेटा मेंबर्स है हम उनको एक्सेस कर सकते हैं. सो ऐसे टाइप के जो डेटा मेंबर्स है या फिर जो एट्रीब्यूट्स है उनको कहते हैं पब्लिक. सो एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे देखो मैंने एक स्टूडेंट क्लास बना दिया है. तो ये जो है ये क्लास वेरिएबल है, कॉलेज नेम, राइट. जैसे हमने क्लास वेरिएबल का
ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा, मैंने दोबारा इसीलिए इंक्लूड कर रही हूँ सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्लास वेरिएबल क्या है। तो क्लास वेरिएबल कैसा होता है कि हम किसी भी मेथड में नहीं डिफाइन कर सकते बट क्लास में डिफाइन कर सकते। तो यहाँ पे कॉलेज नेम क्या हो गया, क्लास वेरिएबल। अब देखो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली लिखा है मैंने, उसको कुछ भी आगे पीछे कुछ भी नहीं दिया है, तो ये बन गया पब्लिक क्लास वेरिएबल। फिर मैंने एक मेथड को लिखा है, डिफाइन किया है शो नाम का, तो वहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया डिवीजन। तो ये क्या हो गया, शो जो मेथड है वो भी क्या हो गया, पब्लिक मेथड है, क्योंकि वो मेथड भी मैंने क्या किया है, कुछ भी अंडरस्कोर दे के एक्सेट्रा नहीं डिफाइन किया। तो मतलब ये मेथड भी मैं क्लास के अंदर डायरेक्टली, सॉरी क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर सकती हूँ। फिर मेरे पास एक वेरिएबल है डिवीजन। सो डिवीजन भी क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, मैंने मेथड के अंदर बनाया है। सो ये क्या हो गया, इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल। और फिर मैंने जस्ट एक मैसेज प्रिंट किया, मतलब डिवीजन स्टूडेंट का कॉलेज नेम। अब कॉलेज नेम क्या है, क्लास वेरिएबल, इसलिए मैंने क्लास का नाम डॉट वो वेरिएबल का नाम लिखा है। ये चीज़ें ध्यान से देखो। सो बस यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया S1 नाम का, फिर मैंने यहाँ पे वो मेथड कॉल कर दिया जिसको मैंने 2 पैरामीटर्स पास कर दिए, सॉरी 1 पैरामीटर पास कर दिया डिवीजन, दैट इज़ FEC। और फिर मैंने उसके आगे जो मैंने कमेंट करके लिखा है वो उसका आउटपुट है। तो इसी हिसाब से मैं पब्लिक वेरिएबल्स डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक्सेस कर सकती हूँ। मतलब डायरेक्टली क्लास के बाहर मैंने प्रिंट फंक्शंस में इनको ऑब्जेक्ट के हेल्प से कॉल किया है, जैसे S1 डॉट डिवीजन, S1 डॉट कॉलेज नेम, स्टूडेंट डॉट डिवीजन एक्सेट्रा। तो किसी भी टाइप में मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पे एक ये हो गया स्मॉल सा चेंज है, S1 की जगह स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम चाहिए था, और स्टूडेंट डॉट डिवीजन दैट इज़ ऑल्सो ओके, वो भी चलता है कि कोई भी हम इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के नाम से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन क्लास वेरिएबल जो है वो क्लास के नाम से ही एक्सेस करना है। सो ये जो लास्ट सेकंड प्रिंट फंक्शन है उसमें बस S1 डॉट कॉलेज नेम डाला है, तो वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, मैंने एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, तो प्लीज़ आप वो एग्जीक्यूट करके चेक कर लो। तो ये हो गया पूरा पब्लिक डेटा मेंबर्स का। अब जो पार्ट है प्राइवेट डेटा मेंबर्स, तो जैसे मैंने बोला था प्राइवेट मतलब क्या, कि वो बस क्लास के अंदर ही यूज़ होंगे, हमें डायरेक्टली बाहर उनको यूज़ करना अलाउड नहीं है। सो प्राइवेट वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन द क्लास विद डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स, मतलब पहले 2 अंडरस्कोर देना है, जैसे इनिट फंक्शन में हम देते हैं उसी टाइप। सो ये जो इनिट फंक्शन है, जैसे जिसको स्टार्टिंग में और एंडिंग में, मतलब दोनों साइड में 2 अंडरस्कोर रहते हैं, लेकिन प्राइवेट जो फंक्शंस या फिर मेथड्स और डेटा मेंबर्स रहते हैं उनको बस स्टार्टिंग में हमें 2 अंडरस्कोर देने। अगर ये आप 2 अंडरस्कोर दे देते हो तो दैट बिकम्स दी प्राइवेट डेटा मेंबर्स। सो प्राइवेट वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम विद इन अ क्लास, ये बस क्लास के अंदर में ही यूज़ होते हैं, क्लास के बाहर आप ऑब्जेक्ट के हेल्प से इनको एक्सेस नहीं कर सकते। So private members are not directly accessible from outside the class. We can call private data members in other method of same class. मतलब उसी मेथड के मेथड में आप उनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाहर नहीं। जैसे एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट था, जो मिन प्राइस था, मैक्स प्राइस था, आप दोबारा वो एग्जाम्पल पे जाके देख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल्स को ट्राई कर रहा था उसकी वैल्यू चेंज करना। इफ़ यू वांट आई विल शो इट अगेन। एनकैप्सुलेशन के मेथड में था मैक्स प्राइस मिन प्राइस में, यहाँ पे देखो। तो ये जो मैक्स प्राइस मिन प्राइस, ये देखो पहले prod 1 नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन prod 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स प्राइस, उसकी वैल्यू मैं क्या कर रही थी, मैं चेंज कर रही थी, मैंने उसको 500 किया था, और फिर मैंने वो शो प्राइस करके जो फंक्शन कॉल किया, सॉरी सेलिंग प्राइस, तो क्या हो गया, स्टिल वो क्या मुझे डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे आउटपुट में 1000 ही डिस्प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मेंबर है, ये डेटा मेंबर, ये प्राइवेट है, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। सो दैट इज़ व्हाट वी आर स्टडिंग ओवर हियर इन प्राइवेट। मैंने बोला था अभी एनकैप्सुलेशन के वक्त कि आपको और डिटेल में पता चलेगा। तो ये जो मेंबर्स है ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स है। इन सम केसेस यू कैन एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल्स आउटसाइड द क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम एंड क्लास नेम। तो क्लास नेम का हमें यूज़ करना पड़ता है। कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फिर क्लास का नाम और फिर वो प्राइवेट वेरिएबल का नाम। तो ऐसा एक मेथड है जिससे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो क्लास वेरिएबल्स, और या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेट क्लास वेरिएबल्स और प्राइवेट
इंस्टेंस वेरिएबल्स. सो डायरेक्टली विल गो फॉर एन एग्जाम्पल. सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे मैंने क्या किया, मोबाइल नंबर ऐसा एक प्राइवेट वेरिएबल ऐड कर दिया. देखो उसके मोबाइल नंबर के पहले मैंने क्या लिख दिया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर. उसके बाद मैंने सेम फंक्शन यूज़ किया. बस मैं क्या कर रही हूँ, ये मोबाइल नंबर को मैंने बस प्राइवेट किया है. तो लास्ट 2 लाइनें जस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी का तो सब सेम ही है कि ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के नाम से वो फंक्शन कॉल किया, फिर क्लास वेरिएबल कॉल किया, एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज सेम. बस लास्ट 2 लाइनें रेफर करो ठीक से. तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मोबाइल नंबर. तो ये क्या बता रहा है कि ये एरर, प्राइवेट वेरिएबल नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, राइट. तो मैंने स्टूडेंट के नाम से भी और ऑब्जेक्ट के नाम से भी मैंने मोबाइल नंबर को एक्सेस करने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो मुझे यहाँ पे अलाउ नहीं करता, वो मुझे एरर देता है दैट प्राइवेट वेरिएबल नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड. सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट डेटा मेंबर्स. सो और एक एक्सेस स्पेसिफायर है, ये तीनों क्या है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. इनको एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं. तो आपके सिलेबस में बस पब्लिक एंड प्राइवेट ही दिया है, लेकिन इफ़ यू वांट यू मे थिंक ऑफ प्रोटेक्टेड ऑल्सो. तो प्रोटेक्टेड का क्या है कि वो सिंगल अंडरस्कोर आपको लगाना है. जैसे प्राइवेट में आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में 2 अंडरस्कोर लगाते हो, लेकिन प्रोटेक्टेड में आपको सिंगल अंडरस्कोर लगाना है वेरिएबल के नाम के पहले. और फिर इसका भी एक ही टेक्निक है कि बस आप लिमिटेड चीज़ों में ही वो प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकते हो. सो इफ़ यू वांट आप थोड़ा सा देख लो बुक में, प्रोटेक्टेड का वैसे ज़रूरत है नहीं, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने जस्ट बता दिया कि ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर होते. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस योर 5th यूनिट. दिस वॉज द लास्ट टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग. So if you have any doubt, please contact me or your respective faculties, no issues. So thank you.